हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। इट्स मी विद यू तनीषा और आज हमारे साथ है मेडलन से उनके सीईओ दीपक शर्मा। हेलो सर, हाउ आर यू? Hi, thank you very much for having me here. होप यू हैड अ गुड डे टुडे बिकॉज टुडे वाज वेरी बिग डे फॉर इंडिया, आई Yes. मस्ट से। सर, Yeah. आपको पता है कि अभी यूनियन बजट साल 2025-26 की शुरुआत हो चुकी है और उसके साथ ही बहुत सारी बड़े अनाउंसमेंट्स हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा हुए हैं। ऐसे में हर सेक्टर को जो उम्मीदें थी, हर एक का तो नहीं लेकिन बहुत सेक्टर्स वर सेटिस्फाइड, वर नॉट सेटिस्फाइड, एवरीवन हैव देयर ओन थिंग्स। सर, अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, सो व्हाट वाज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन बजट? फर्स्ट आई वांट टू आस्क दिस, हाउ यू फेल्ट बजट वाज? So I think at the first cut, हम्म। the allocation is significant. So I see a almost 9.8% increase in spending, यस। and the spending seems to be in the sectors which need attention the most. हम्म। So so just looking at a few critical things that come up, I हम्म। think since we are closely involved in training and skilling of people in hospitals, the shortage of manpower, qualified manpower, has been painfully obvious to us in the last 4 5 years that while we've made a lot of difference, but I think from the ground up, 10,000 new MBBS seats within the year, and then over the next 5 years, 75,000 seats, it's like a big relief. I think it will obviously take time for these graduates to enter the workforce, हम्म। but it's a huge step, I think. So that's the first thing that's standing from a very selfish point of view. I think this is a really big step because this is badly needed. हमारे रेशोस बहुत कम है हम्म। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक एक्सेट्रा डॉक्टर टू पेशेंट रेट। तो अभी ये डॉक्टर्स का है। I think the next level nursing staff etc. That's the other shortage that needs to be addressed. But this is a great first step, right? The second big thing that stands out is the cancer care यस, एग्जैक्टली। network that's been announced. There's 200 centers, in districts or daycare centers, making that affordable. I think that is the second key theme. Making these uh, cures and remedies accessible to the common person and taking it to the grassroots. I think now it's possible because of technology, यस, एग्जैक्टली। right? When if you have centers in remote districts, they can consult experts in the key centers. So I think that hub and spoke model will really work well now that this outreach is there with 200 new centers, which can reach population which is not being served. यस। सर, लेकिन इस दौरान जो आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी, राइट सर? कैन आई यूज? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। सर, ये जो भी इस दौरान बजट के दौरान कुछ मेडिसिन को सस्ता भी किया गया, कैंसर की 36, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेडिसिन को सस्ता किया गया, बहुत सारी मेडिसिन को टैक्स फ्री कर दिया गया। तो मुझे लगता है ये बजट अगर किसी भी सेक्टर के लिए कैसा भी हो, लेकिन मुझे लाइक आई थिंक हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लिया गया है। एंड सर मुझे, हाँ बिल्कुल। यस एंड सर बिकॉज हाँ आई, बिल्कुल ठीक है। बोलिए बोलिए। No, 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 sir, you go. You say. I just wanted to reinforce what you said कि वो बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि जो अफोर्डेबिलिटी है। द अदर पॉइंट आई वाज सेइंग वन इज टू वो 200 सेंटर्स प्लस जो मेडिसिन का जो कस्टम ड्यूटी वगैरह ड्रॉप कर दिया है या बहुत कम कर दिया है जी। कैंसर वेयर डिजीजेस का, हम्म। वो affects the bottom of the population along with Ayushman Bharat, also the schemes which are more supportive schemes. I हम्म। think this will have big difference. But I हम्म। think at the other end, the additional slight ease of norms for visas for medical tourism at the high end will also help. So I think at both ends, he's हम्म। trying to make sure hospitals profitability so they can get medical tourism. The private sector is also going to benefit Yes, sir. if it's Every easy. sector because sir, health is for everyone. Yeah, yeah, सर, yeah. ये जो गिग वर्कर्स के लिए जो हमारे ये गिग वर्कर्स हैं, 1 करोड़ गिग वर्कर्स को हेल्थ कवर देने की ये जो योजना के बारे में बताया गया, इस पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि विल इट बी अ गुड कॉल फॉर गिग वर्कर्स हु आर वर्किंग विदाउट सीइंग दिनास, बिना घंटे देखे No, जो I think बाहर काम कर रहे हैं सर, जो लोग बाहर उनके लिए हेल्थ, क्योंकि सर मतलब अगर आम जनता के हिसाब से सोचूं तो सर कौन से एनवायरनमेंट पे किधर जाके कौन क्या खाना, किस घर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, किसको टच करें, ऐसे जैसे अभी हम पेंडेमिक से निकल कर आए हैं, वी डोंट नो हु इज अफेक्टेड बाय व्हाट। ऐसे में दे आर द मेन सोर्स वाज गोइंग फ्रॉम होम टू होम, टेकिंग फूड टू फूड,
और ये बहुत ऑब्वियस है कि उनकी हेल्थ पे असर हो गई, भले ही कितना भी हाइजीनिक घर हो, बट एक घर तो ऐसा पड़ ही जाता है जहाँ पे मे बी समवन इज अफेक्टेड बाय समथिंग, मे बी दे ऑल्सो नो अबाउट इट। बिकॉज पैंडेमिक के बाद से मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत हेल्थ को लेके कॉन्शियस सरकार भी हुई है और लोग भी हुए हैं, बट स्टिल आफ्टर एवरी प्रिकॉशन सर वी हैव टू गो थ्रू समथिंग्स इफ इट हैज बीन डन। सो आपको क्या लगता है सर, जो हेल्थ कवर है, इट इज अ गुड कॉल फॉर देम? Oh, it is a very good call for the overall sector. You see, it's not just because the nature of their job, because they go from home to home and their health gets affected. It is also the idea कि employment के साथ health insurance is gaining ground in India. But these यस। gig workers have been left in the gray area because contractually they're not full-time workers. हम्म। So they're getting employment, but they're being left out of a key coverage, which I think as a country, हमको slowly आदत हो जानी चाहिए कि your employer should provide health cover, Yes, right? it doesn't matter they are going on in a big offices or in MNCs, or if they are working by a few hours. Everyone deserves to be healthy if they are working for Yeah, some. Yes, so health is yeah, for and this will hmm. expand the demand for hospitals also, which are, Exactly. India still has a very large cash where people pay out of their own pocket, right? Yes, So I think it'll improve the profitability and encourage hospitals also to invest in more facilities because they will see the demand coming up. So I think overall for the sector, it's a wonderful thing that we are having more coverage from the even we are not leaving out people who are gig workers. We're not yes, focusing only on employees and boys. in the Or formal sector. yes, this was the good call. As you said, sir, I just want to highlight your point कि it's not only for a specific people. इस बार की जो सरकार ने हेल्थ को सेक्टर को लेकर जो कदम उठाए हैं वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ पीपल के लिए नहीं है कि जो अफोर्ड कर सकते हैं। हेल्थ इज फॉर एवरीवन, द डे दे बॉर्न हेल्थ स्टार्ट्स फ्रॉम देयर ओनली। मे बी अर्निंग Absolutely. स्टार्ट्स इन अ सम फ्यू स्टेज, आप ग्रेजुएट होते हो, आप निकलते हो, लेकिन सर हेल्थ इज समथिंग, अगर कोई बंदा हेल्दी ही नहीं रहेगा, एंड हेल्थ आई गेस इज नॉट ओनली अबाउट सर द फिजिकली जो चोटें लग जाती हैं या कुछ, इट्स अबाउट इनसाइड हेल्थ ऑल्सो। वी डोंट नो अबाउट कैंसर की कैसे कुछ कौन कब अफेक्टेड है। आजकल इट्स गेटिंग वेरी वास्टली स्प्रेडिंग, किसी को भी कभी भी हो सकता है। वी डोंट नो हु इज सफरिंग फ्रॉम विच, लोगों को थर्ड स्टेज पर आके पता चल रहा है। लेकिन ये डे केयर की वजह से पीपल कैन गेट टू नो अबाउट दिस बिफोर, सो दैट एक तो उनका खर्चा का पैसा बचेगा सर, बिकॉज जितनी थर्ड स्टेज सेकेंड स्टेज, दीज थिंग्स नीड्स मनी। तो सर लेकिन आपको, आर यू सेटिस्फाइड विद द बजट? Yeah, as I think the जो पॉइंट हमने कवर किए हैं ना, हाँ। they are actually big steps both in the supply and the demand side. हम्म। सप्लाई साइड में जैसे डॉक्टर्स की आपने संख्या बढ़ा दी या बढ़ हाँ जाएगी अगले 4-5 साल में। हाँ डिमांड साइड पे आपने इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया हाँ हाँ, 200। तो आई थिंक इस क्योंकि अगर एक ही साइड पे फोकस करो तो वो प्रेशर आ जाता है प्राइसिंग पे, राइट? अगर आप yes. बहुत ज्यादा सप्लाई कर दो और डिमांड नहीं हो तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे या फिर रिसोर्स। तो आई थिंक ये दोनों तरीके से ये काफी वेल सॉर्ट आउट मेजर्स हैं जो वो डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करेंगे। इसको टाइम लगेगा इफेक्ट आने में, लेकिन अप्रोच बहुत अच्छी है, बैलेंस्ड है। तो ये जो इंश्योरेंस सेक्शन में जो एफडीआई है उसको 74% से लेके पूरा 100% कर दिया गया है इंश्योरेंस सेक्टर का। तो आपका इस पर क्या कॉल है? व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड मूव बाय द गवर्नमेंट? I think absolutely it was long overdue. There are many other sectors which need this kind of attention. It is insurance depends on capital, right, and expertise. Now, a lot of that has to come from. Sometimes it's not in the country. I think capital. So I think it is long overdue. That should have been happening, but it's already happened now. It's a very big step ahead. I think we have, as an economy, we've learned how to manage the risks of opening. So we've gradually opened. I think this is the right time to take the final step to make it 100%, even in a sector like insurance. So it's a very welcome move. Competition आएगा, ज़्यादा investment होगी, expertise आएगी. So I think it's a perfect move. सर वही, और जैसे हमने भी बात की थी कि कैंसर की, कि कैंसर के लिए डे केयर स्टार्ट कर रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल्स के लिए। सर 4 बिल्डिंग अगर खड़ी कर देंगे, लेकिन अगर उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होंगे, एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं होंगे, सो आई डोंट थिंक इट विल वर्क। एंड फॉर दैट एज यू सेड कि नर्सिंग वाला पार्ट जो है उसको थोड़ा और इवेलुएट करना है, क्योंकि सर ऑब्वियसली उस 4 बिल्डिंग के अंदर अगर इंसान ही नहीं होंगे तो फिर कोई कैसे ठीक होगा? बिकॉज सर बेसिकली पब्लिक सेक्टर
में एम्प्लॉय मतलब पीपल आर स्विचिंग टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर. डॉक्टर्स आर ऑल्सो स्विचिंग टुवर्ड्स मेडिकल फॉर द ट्रीटमेंट, ऑल्सो स्विचिंग टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में. उनको लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा चाहिए. हमारे सबके माइंड में है सर कि वो ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए. इट मे बी वेरी कॉस्टली. पीपल टेक लोन टू गेट देयर लाइक देयर ट्रीट फॉर देयर ट्रीटमेंट. लोन तक लेना पड़ता है, सब धार लेना पड़ता है लोगों को. लेकिन अगर कैंसर जैसी चीज से कोई बुखार नहीं है, वी नो इट्स वेरी डेंजरस, टेक पीपल्स लाइफ, अगर समय पे ना पता चले. लेकिन अगर गवर्नमेंट सही समय पे देख के इसको अच्छे से इवैल्यूएट करके जैसा बोला गया है वैसा होगा, तो मेरे ख्याल से कोई भी प्राइवेट से ज्यादा पब्लिक में अगर सारी फैसिलिटीज टाइम पे मिलेंगे, तो आई डोंट थिंक पीपल विल स्विच ऑन प्राइवेट सेक्टर्स और हॉस्पिटल्स फॉर. आई थिंक आई थिंक वो दोनों सेक्टर्स के लिए जगह है. हम्म. इतनी हम्म. बड़ी आबादी है हमारी हम्म. कि आई थिंक जिनके पास अगर चॉइस है, अगर वो ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, हम्म. in addition to the basic cure and treatment, they also want a more comfortable experience in the hospital. There's हम्म. no harm. I think private sector has a very important role to play. So यस. to be able to have that choice, but overall, I think अगर कैंसर का बर्डन जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा, जल्दी क्योर हो जाएंगे, हमारी यंग पॉपुलेशन भी है, तो हम्म. हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा. नहीं तो कैंसर से इतना प्रोडक्टिविटी लॉस होता है, हम्म. और जो वेस्टेज होता है अगर लेट डिटेक्ट हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है. Exactly, sir, exactly. So, sir, apart from health, what do you think government has matlab, given benefits to people in which sector? So I think overall the startup sector again, where there's a lot of there's a fund of funds creation, right, which is of specific interest to us because in the last 5 years हम लोगों ने एक हेल्थ टेक एड टेक स्टार्टअप खड़ा किया है. और जो रिजर्व कैटेगरी में जो पॉपुलेशन है ऐसी उनके लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्पेशल इंसेंटिव दे रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए. आई हम्म. थिंक वो स्टार्टअप्स का जब लेवल प्लेइंग फील्ड है ना, वो लेवल हो जाएगा. आई थिंक इट्स अगेन वन अदर सेक्टर विच इज ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज हमारी जो इकोनॉमी की जो बैकबोन है, it cannot be a few large companies and conglomerates. So there have to be Exactly. lots of startups. Some of them will come out to be SMEs, वो eventually succeed करेंगे. But ये जो startups के लिए जो allocation किया है fund of funds के लिए Yes. और ACSC sector entrepreneurs के लिए, I think that's another one very big step forward. So, thank you so much, sir, for giving us your time regarding budget. Hope जो चीज़ें हैं वो fulfill हों. And as I can say कि medical sector में, in the health sector, people are a bit of satisfied with the decisions, as you are also saying. And after talking to you, so let's see, sir, ये होता है या नहीं, ये तो हमें आगे पता चलेगा. So, और अगले sir, साल हमें नर्सिंग में चाहिए. जी जी, हाँ हाँ, the lacking is nursing, which was nice, sir. Yes. I'll point this out कि हर सेक्टर की अपनी अपनी नीड्स होती है सर. अगर आज ए कर रहा है तो कल नर्सिंग भी, मे बी दे विल सी, विल रेज इट. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, सर. और अगर हमारी ऑडियंस जो भी इंटरव्यू देख रही है, अगर उनका सर से रिलेटेड या हमारी बातचीत में अगर कोई भी आपको ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में आपको इवैल्यूएट करना है, या कोई डाउट है, या फिर कोई क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्टली जस्ट कमेंट डाउन बिलो. आई कैन ट्राई कि मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको थ्रू सर आपको दे सकूं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन पैसा लाइव. थैंक यू, सर. Thank you, Rishan.